that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. कि सबके मन में एक बात है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, ऐसी एक सोच समाज में आज है. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of. अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए. That the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? The election of Haryana was stolen, and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. अपने संविधान ने तो यही कहा है. मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कहे, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है, तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए. लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी. 3-4 नाम, जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन, कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अनिल अपोज, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है. मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ. भुसावल रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ. खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी. देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर. यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर. यवतमाळ. फिर चिखलदरा चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे. 40 गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण. धामणगांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं वहाँ, अनअपोज्ड हो गए, और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो. तो अगर बीजेपी, और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया, और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है. Delimitation. Don't do delimitation like what you have done in Kashmir and in Assam. Because if BJP it is delimitation, another game, it has to win, then the loser is going to other political parties. But the loser will be country's democracy. Sir, right to vote. Ambedkar called it a principal theory of the Constitution. I would demand, I have put a private bill last assembly, the age of contesting elections for MLA and Lok Sabha should be brought down to 20.
Rajya Sabha 25, for Vidhan Sabha 22. Why? Because, sir, we have 52% of India's population under the age of 30. What are we giving to them? So that is why I propose. And lastly, Thank sir, you. and Thank you, I'm including this. Lastly, sir. Member Chandrasekhar ji. Sir, I'm just concluding, sir. Lastly, sir, we must build a consensus and make right to vote a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of freedom. भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहाँ खड़े हैं? अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो एक तरफ तो अपना पैसा दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ कोई जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर के आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ये भेदभाव अगर किसी ने देखा है तो हम लोगों ने देखा है। फिर तीसरा, हम चाहते हैं कि मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं। ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। वोटर्स के नाम अगर डुप्लीकेट, अगर ब्लेमिशेस रहेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब होगा? ये बातें हमने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने निर्वाचन आयोग सदन में हमने जब रखी, जब पूरे डेलीगेशन के साथ अपोजिशन पार्टीज के गए थे, तब उन्होंने एक ऑटोक्रेट की तरह से हमारे ऊपर बर्ताव किया। और राजीव रंजन राय जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, वी डू अंडरस्टैंड, वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, but the person who is in charge or who is sitting there and holding this kind of respectable position, coveted position, he should be answerable to the people. He is answerable to the political parties because we are the largest stakeholders. He is answerable, accountable to the people of India. ये जो SIR के बात कर रहे हैं, SIR के लिए बिहार में जिस स्टेट्स में हो रहा है, क्यों इस तरह से बात? जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया आधार कार्ड आपको यहाँ पे सख्ती से लाना होगा, when other 11 proofs were there, why Aadhaar card was added to it? This itself shows that you have to accept you are not full-fledged और आप पूरे विद्वान पंडित नहीं हैं. You have to go by what is there in the constitution, and then according to Supreme Court, what judgment given by the Supreme Court, it was added. इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना, लेना, नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे, उसमें जितना करप्ट को करना है, करप्शन करना है, करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।